رب سے جڑنے کا سفر دل کی صدا بن جائے، زندگی کا ہر اندھیرا روشنی سا بن جائے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ نور وہ کیسے خود کو نور سے محروم کر دے، وہ نور جو خود کو اللہ کے لیے چھپائے بغیر نہیں ملتا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ہاتھ میں پکڑی نرم و ملائم سیاہ عبایا پر گر کر جذب ہو گیا۔ یہ تو مولوی لگتا ہے۔ مولوی تو پردے کے بارے سخت ہوتے ہیں، آج بس نام کے ہی مولوی رہ گئے ہیں۔ اے میری رب، مجھے معاف کر دینا۔ آج میری بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے تیرے دین پر نام آ گیا۔ شہریار بھائی، آپ تو شادی پر بلا کر ہمیں بھول ہی گئے۔ بس نماز پڑھ کر آیا تھا تو ادھر ہی بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں ہم اپنی خوشی کے موقعوں پر سب سے پہلے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خوشیاں سلامت رکھے۔ آج اس نے شادی کے کاموں کی وجہ سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میوزک اسلام میں حرام ہے، اوپر سے پھر یہ شادیوں کا کمبائن سسٹم، جوان لڑکے لڑکیاں وہ بھی اکٹھے، اور ان کے لباس، نظروں کانوں کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسے ماحول میں۔ بے حیائی کے اس دور میں یوسف علیہ السلام کی سی روش اختیار کرنے والے بازی جیت جاتے ہیں، خواہ ایمان کی ہو، دلوں کی یا جنتوں کی۔ یعنی قصوروار تو پھر انسان ہی ٹھہرا۔ بالکل وہی ٹھہرا۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت کا رستہ دکھاتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اب انسان کی چوائس کا امتحان ہوتا ہے، وہ کیا چوز کرتا ہے، دنیا اور اس کی فانی زندگی یا دین اور آخرت کی کامیابی۔ وہ ندی کے کنارے سبز گھاس پر بیٹھی، پانی میں نیلے آسمان اور اس میں تیرتے سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کا عکس دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، اس کا وزن بہت گر چکا تھا، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مگر مسکراہٹ ویسی ہی گہری تھی۔ ارد گرد بنے سیاہ حلقوں میں موجود آنکھوں کی چمک اب بڑھ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے دل کے گہرے رازوں کی عیاں لگتی تھی، مگر ہر ایک کے پاس ایسی نگاہ نہ تھی کہ ان رازوں کی حقیقت کو پا سکے۔ پیچھے بہت دور اس کے والدین بینچ پر بیٹھے اداس لہجے میں اس کو پیچھے سے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے، مگر وہ اتنی دور تھے کہ فاطمہ کو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن معصوم سی گڑیا پانی سے کھیلنے میں مگن تھی۔ میں نے سنا تھا کہ جب محبت ہوتی ہے تو ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کر محبوب کی یاد آتی ہے، اس کی یاد میں لب خود ہی مسکراتے رہتے ہیں۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی محبت ہو گئی ہے اللہ۔ آپ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر مجھے آپ یاد آتے ہیں۔ آپ کی یاد میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ چار سو پھیلے اس وسیع نیلے آسمان کو دیکھ کر، ندی کے اس ٹھنڈے اور نیلے پانی کو دیکھ کر، آنکھوں کو بھاتی ہری گھاس کو دیکھ کر، آس پاس بکھرے ان رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر، ٹھنڈی گدگداتی ہوا، مجھے یہ سب آپ کی یاد ہی تو دلاتے ہیں اللہ۔ ہاں اللہ، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں امی؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا اس کی بہن کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ وہ دیندار ہوتا تو اپنے گھر میں یہ سب بے حیائی ہونے دیتا؟ اینی، تم نے کسی کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اگر تمہارا بھائی اس رشتے کے حق میں ہے تو تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے اپنے بھائی کی پسند پر۔ نائلہ کی شادی کے 3 ماہ بعد شہریار کی والدہ نے شہریار کے مجبور کرنے پر معاذ کے گھر آ کر قرۃ العین کا رشتہ مانگا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے شہریار کو نائلہ کی شادی پر دور سے دیکھا تو تھا، مگر مکمل طور پر جانتی نہ تھیں۔ قرۃ العین اچانک سے اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اس نے تو نیک اور عالم شوہر کے لیے دعائیں کی تھیں، جو اس کے دین میں اس کو آگے بڑھاتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے رستے پر لے چلتا، مگر یہ مجھے بھائی پر بھروسہ ہے امی، مگر اس انسان کے دین پر نہیں۔ تم ججمنٹل ہو رہی ہو اینی۔ پیچھے کھڑے معاذ نے کہا۔
गालिबन कमरे में दाखिल होते हुए उसने एनी की सारी बातें सुन ली थीं। तुम कैसे किसी की पारसाई को जज कर सकती हो? अगर वो एक मौका पर दीन के किसी हुक्म पर अमल करने में नाकाम हो गया है तो उसका क्या मतलब है? वो ईमान वाला नहीं रहा। मेरा मतलब ये नहीं था भैया। जो भी मतलब था, मुझे आधा साल हो गया है उसके साथ वक्त गुजारे। वो मेरे साथ मिलकर कुरान सीखता है, वो फराइज का पाबंद है, वो अपनी ज़ात पर मुकम्मल तौर पर दीन नाफिज करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसने बुरी सोहबत, फिल्में, गाने, सिगरेट, हराम कमाई हर चीज छोड़ दी है। उसे पर्दादार और दीनदार बीवी चाहिए। क्या ये उसकी दीन से मोहब्बत नहीं? सॉरी भैया। इट्स ओके। अपने कहे पर इस्तगफार करो। और हाँ, इस्तिखारा करना। अम्मी आप भी इस्तिखारा कीजिएगा, मैं भी कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। बहुत संजीदगी से ये बात कहकर वो तेजी से कमरे से निकल गया। कुर्रतुलैन और उसकी अम्मी एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखने लगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कब आया मेरा बेटा? मुझे तो पता ही नहीं चला। जी बाबा, बस अभी आई। आप लोगों को शायद डिस्टर्ब कर दिया। आप भी कहते होंगे कि हमें इतनी खूबसूरत जगह पर भी सुकून से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारने देती ये लड़की। मगर इस बाग के हर शजर, हर परिंदे ने उनके कहकहों में उदासी को महसूस किया था। कुछ था उनके कहकहों में जो उनके टूटे दिलों की गम्माजी कर रहा था। हंसते हंसते उनकी आंखों में नमी आ गई। हम दोनों का सुकून तो तुम हो बेटा, हमारी आंखों की ठंडक। मेरे अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगी दें। आप दोनों को जन्नत में भी एक दूसरे का साथी बनाए। आपको भी। मिसेस रेयान बस इतना ही कह पाई और उससे नजरें फेर कर आसमान की तरफ देखने लगी। शायद वो आंखों में तीरता दर्द अपनी बेटी से छुपाना चाहती थी, या शायद वो उसकी दी हुई जिंदगी की दुआ वापस उसी को देकर आसमान वाले की तरफ से कबूलियत पाने की मुंतजिर थी। बाबा, हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है, चले? जी मेरी जान। आंखों में नमी लिए वो उसका हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई। वो जाए नमाज पर ऐसे बैठी थी जैसे कोई जंजीरों में जकड़ा गुलाम दो जानू होकर बिल्कुल बेबस होता है। ये तहज्जुद का वक्त था। कुर्रतुलैन उसने सारी रात इस पहर के इंतजार में करवटें बदलते गुजार दी थी कि जब उसके रब ने आसमानी दुनिया पर आना था। अल्लाह, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, मैं तेरी कमजोर बंदी, तेरे दर की मोहताज हूं, जिसके पास तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, जिसे तेरे सिवा कोई समझता नहीं। ए मेरे खालिक, मैं तेरी अदना सी मखलूक, तेरे इतने बड़े कायनात के निजाम में मेरी औकात ही क्या। सोलर सिस्टम के एक छोटे से सैयारे में, छोटे से बर्रे आजम की एक छोटे से मुल्क के एक छोटे से शहर की एक छोटी सी गली में बने छोटे से घर के छोटे से कमरे में बैठी तुझे पुकारने वाली तेरी अदना और हकीर सी बंदी। है वो रब जो अल-वदूद है वो रब जो अल-अलीम है वो रब जो अल-लतीफ है। आपसे मेरा दर्द छुपा हुआ नहीं है। मैं किसके पास जाऊं अल्लाह? आपकी जात के सिवा और कौन है जो मेरी दुआ सुन सके? आपके सिवा कौन है जो मेरी मुश्किल हल कर सके? मैंने आपके सिवा किसी को नहीं पाया अल्लाह। है मेरे परवरदिगार, मुझे थाम लेना, प्लीज मुझे जवाब देना, मुझे समझा दें। आपने मुझे कभी खैर से महरूम नहीं किया अल्लाह। मुझे यकीन है कि अगर आपने मेरे हक में कोई फैसला किया है तो ये मेरे हक में बेहतरीन होगा। रोते हुए उसका जिस्म कांप रहा था। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए सिसक रही थी, बिलक रही थी। उसने तहज्जुद के नवाफिल के बाद इस्तिखारा के 2 नफल पढ़े थे। उसे शहरयार के रिश्ते के हवाले से अल्लाह से खैर तलब करनी थी। उसका दिल बेचैन था, वो समझ नहीं पा रही थी। उसे यकीन था इस्तिखारे पर
क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो आदमी अपने मामलात में इस्तिखारा करता हो वो कभी नाकाम नहीं होगा। वो इस्तिखारा की मसनून दुआ पढ़ने लगी। अल्लाह मेरे लिए मेरी भलाई के रास्ते खोल दें। मैंने अपने ज़ौज की शक्ल में हमेशा आपसे आपका महबूब बंदा मांगा है, वो बंदा जो मुझसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाला हो, वो जो आपको महबूब हो, वो जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत के रास्ते पर चलाए, वो जो मेरी ईमान का, मेरी रूह का साथी हो, वो जिसकी सोहबत मुझे आपकी मोहब्बत में शदीद कर दे, वो जो मेरी आंखों की ठंडक हो। या अल्लाह, आप जानते हैं मैंने हमेशा आपसे यही मांगा है। मैं इस शख्स को नहीं जानती, आप जानते हैं। प्लीज़ मुझ पर रहम फरमाएं। अल्लाह प्लीज़ इरहमनी, मुझ पर रहम करें। उसने रोते हुए दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मुकम्मल की। दिल अब कदरे पुरसुकून हो चुका था। उसने अपने कमरे की लाइट ऑन की और कुरान उठाकर पढ़ने के लिए जाए नमाज पर ही बैठ गई। ये उसका मामूल था। वो फजर की आज़ानें होने तक तिलावत किया करती थी। उसने अपना कल का छोड़ा हुआ सबक खोला कि आगे पढ़ सके। जैसे ही सफ़ा खुला तो सामने मौजूद आयत पढ़कर उसके हाथ वहीं रुक गए। धड़कन तेज हो गई। वो आंसू जो अभी चंद लम्हे पहले थे ही थे, फिर किसी सैलाब की तरह रवां हो गए। जो शख्स नेक ख्वाह मर्द हो या औरत, लेकिन मोमिन हो, तो हम उसे यकीनन निहायत पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे और उनकी नेक आमाल का बेहतर बदला भी उन्हें ज़रूर ज़रूर देंगे। ओ मेरे प्यारे अल्लाह। वो कुरान सीने से लगाए सिसकियां ले लेकर रो रही थी। अर्श वाले ने हमेशा की तरह आज फिर उसे थाम लिया था, उसकी पुकार को सुन लिया था, उसे जवाब दे दिया था। इसके बाद उसने कई सफ़े पलट दिए। आगे सूरत नूर खुली थी, उसकी फेवरेट सूरत। आयत का आधा हिस्सा हाईलाइट था जिस पर उसकी निगाह जाकर टिक गई। और औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। अल्लाह, मैंने आपके लिए खुद को पाकीज़ा रखने की कोशिश की। आप जानते हैं ना कितना मुश्किल था अपनी निगाहों की हिफाजत करना। मुझे यकीन है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। कांपते हाथों से मजीद आगे सफ़ात पलटे। और गालिब, निहायत रहम वाले पर भरोसा रखो, जो तुम्हें देखता है जब तुम तहज्जुद के लिए खड़े होते हो, और सजदा करने वालों में तुम्हारे फिरने को भी। यकीनन वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। वो हमेशा की तरह शाकिर थी, मगर कदरे पुरसुकून। आंसू सुकून से बह तो रहे थे, मगर दिल ठहर चुका था। वो जवाब पा चुकी थी। उसके लिए उसके रब ने पाकीज़ा जिंदगी और पाकीज़ा इंसान का इंतखाब किया था। उसे बस तवक्कुल करना था अपने रब पर। बेशक उस सुनने वाले की तरफ उसकी दुआ सुन ली गई थी। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए सजदाए शुक्र में गिर गई। बेशक ही अल्लाह की तरफ से जवाब मिलना उस पर बहुत बड़ा इनाम था।